very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh, and today onwards we are going to start the chapter number 1 of 11th biology, that is the living world. Okay, in the first unit, that is taxonomy, you have to study 4 chapters. The first chapter is about the living world. The second chapter is about the biological classification. The third chapter is about the plant kingdom, and the fourth chapter is about the animal kingdom. Okay, so in this first chapter, that is the living world, we will study about the basic thing about the living world: what is living, what is non-living, what are the main criteria on which we divide the living and non-living. Whatever the things you had studied in the 6th or 9th standard, a bit ahead we'll study in this 11th standard. Okay, and so this is about the first chapter. In second chapter, that is biological classification, we'll study about the bacteria, that is kingdom Monera and kingdom Protista we are going to study, and various type of bacteria as well as various type of Protista we'll study in the second chapter. We will study about the viruses, we will study about the viroids, we'll study about the bacteriophage in the second chapter. In the third chapter of this unit, we'll study about the plant kingdom. In the plant kingdom, we'll study the different division of the plant kingdom, that is the phylum division: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiospermy and Gymnospermy. Okay, so these are the 3 chapters, and after that there is a 4th chapter, it is animal kingdom. Animal kingdom will study about the different phylums of the animal. Likewise, the first phylum is the Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. So these 9 phylums we'll study in the 4th chapter. So this is the basic thing that I'm giving a brief idea about the first unit, that is taxonomy. So today onwards we'll start the first chapter, that is the living world. In that we have to study the living world, and we have to classify the organism into the various categories in the plant. Basically the organisms are classified into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. Okay, so in this we'll study how the classification is done, what are the system of classification, how the scientific names are written, okay, what are the rules of writing the scientific name, what is museum, what is herbarium, how we are preparing them, what is taxonomical aids, what is botanical garden, what is zoological park, so these all things we'll study in the living world chapter. Okay, so let's start. First of all, we'll study that what is life. Life क्या होता है, जिंदगी क्या होती है. तो इसकी जो definition है, it is a unique complex organization of molecule that express itself through chemical reactions. ठीक है, तो life क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बहुत सारे केमिकल से मिलकर के एक लाइफ है वो बना हुआ है. ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, और वो एक्सप्रेस करता है वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने आप को. ठीक है, और जो भी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स है वो क्या क्या हैं. द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, एडेप्टेशन मैंने 2 बार लिख दिया. तो ये 5 जो है वो मेन फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के: ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा सा इलोबरेट वे में पढ़ेंगे अभी. ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लिविंग बींग के पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होती है. दैट मीन्स देयर शेप एंड साइज इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. ओके, कभी कभी थोड़ी बहुत माइन्यूट वेरिएशंस हो सकती हैं. फिर अगला हमको लिविंग बीइंग का फीचर पढ़ना है कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स है उससे मिलकर के टिश्यूज बने, सेल्स बने, सेल से मिलकर के टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना है. सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ में क्या होता है, सेल के नंबर में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. बॉडी मास में ग्रोथ होगी तो भी उसको ग्रोथ बोलते हैं. ड्राई वेट में अगर इंक्रीज होगी तो भी उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं. फिर डेवलपमेंट. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, जो भी एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म इज व्हाट इज द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. रिप्रोडक्शन. ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज द रिप्रोडक्शन. होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है, अपने बॉडी की कंडीशंस को सेम मेंटेन करके रखने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं,
होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट फिक्स्ड है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, होम्योस्टेसिस। हमने अपनी बॉडी की टेम्परेचर को फिक्स रखा है, ठीक है, सो दैट इज द होम्योस्टेसिस। फिर कॉन्सियसनेस, ह्यूमन बीइंग जो है, जो भी लिविंग बीइंग्स है वो कॉन्सियस है। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, मिमोसा पुडिका, उसको जैसे ही आप छूते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ह्यूमन के अंदर भी कॉन्सियसनेस है। अगर मान लो कि कोई आपने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो क्या करोगे, जस्ट यू विल रिमूव योर हैंड फ्रॉम देयर, सो दैट इज व्हाट, कॉन्सियसनेस। फिर एडेप्टेशन, हमारा बहुत सारे तरह का एडेप्टेशन होता है। कुछ लोग जो है वो, कुछ एनिमल जो है एरियल होते हैं, बर्ड्स वगैरह जो है वो एयर में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो एक्वेटिक एडेप्टेशन है, कुछ का टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की एडेप्टेशन है। जैसे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लिया, दैट इज देयर एडेप्टेशन। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या, कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो है वो पहले चिंपांजी और बंदरों के जैसे थे, फिर हमारा इवोल्यूशन हुआ और हम लोग अब ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, ठीक है। सो ये क्या इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन जो वर्ड है वो इवॉल्वरी से मिलकर के बना है। इवॉल्वरी का मीनिंग क्या होता है, जो वापस दोबारा उस फॉर्म में ना जा सके, अनरैप्ड और अनफोल्ड, ठीक है, जिसको दोबारा से अनफोल्ड नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि दोबारा से हम बंदर बन जाए इंसान से, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, सो दिस इज द इवोल्यूशन। फिर रिपेयर एंड रीजनरेशन, जो भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि रिपेयर और रीजनरेशन की, ठीक है। मान लो कि किसी को कहीं चोट लग गई तो उनकी क्या होती है, वो हीलिंग हो जाती है, वहां पे रिपेयरमेंट हो जाता है, वहां पे रीजनरेशन हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। एजिंग, जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी प्लांट्स है, एनिमल है, उनको एक एज के बाद जो है वो उनका डेथ होता है, उनकी एक एजिंग होती है, वृद्धावस्था आती है। तो एनिमल्स में हम लोग उसको एजिंग बोलते हैं, प्लांट में उसको हम लोग सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है, दैट विल स्टडी। फिर लास्ट जो फिनोमिनन है क्या है, डेथ, जो कि इनएविटेबल है, बिना कोई इसको रोक नहीं सकता है डेथ को, ठीक है। इट्स इनएविटेबल एंड इट्स द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड। जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी स्टडीड। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड साइज का मतलब क्या, लिविंग बीइंग हैव डेफिनेट शेप एंड साइज व्हिच मे चेंज विद इन द नैरो रेंज, ठीक है। थोड़े बहुत रेंजेस तक वो चेंज हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो है उनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। जैसे कि हमारा तो जब तक ग्रोथ हुआ 20-21 साल तक, तब तक हमारी जो साइज है वो चेंज हुई। उसके बाद से 20-21 साल के बाद वो लगभग वैसे ही रहती है, ठीक है। तो स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं लिविंग बीइंग के साइज में, ओके। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड एज मॉर्फस, ठीक है। मॉर्फस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्म। तो जो लिविंग बीइंग है उनकी फॉर्म्स क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज मॉर्फस। जबकि जो नॉन लिविंग बीइंग है वो अमॉर्फस होते हैं, उनका कोई फॉर्म डेफिनेट नहीं होता है, उनका फॉर्म कोई डिटरमाइंड नहीं होता है, दैट्स व्हाई नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड एज अमॉर्फस एंड लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट, मॉर्फस। हम लोग मॉर्फस हैं और जो सैंड है, जो भी नॉन लिविंग चीजें वो क्या है, अमॉर्फस है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच अरेंज इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन है बॉडी का स्मॉलर यूनिट्स में और उसकी सब यूनिट्स में, और उसका अरेंजमेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले जो है देयर इज अ मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेल बनता है, सेल मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा। जैसे हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारी लिवर एक ऑर्गन है, हमारी किडनी एक ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना देंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। जैसे कि ब्लड वेसल्स मिल गया, हार्ट मिल गया, इन्होंने मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया, नर्व्स मिल गया, ब्रेन मिल गया, इन्होंने मिलकर के नर्वस सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर के क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये होते हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो लिविंग बीइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिविंग बीइंग में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल। एक बार किसी का ग्रोथ हो गया, सपोज करो छोटा बच्चा है जो कि काफी छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी एक बार ग्रोथ हो गई, वो 20-21 साल का हो गया, उसने एक हाइट अटेन कर ली, फिर वापस से हम लोग कोशिश करेंगे कि वो छोटे बच्चे के फॉर्म में चले जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? इट्स परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ठीक है, इन साइज ऑफ सेल एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली accompanied by increase in dry weight, mass and number। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या होता है, क्या क्या चीजें आपकी बढ़ती हैं? एक तो ड्राई वेट बढ़ता है, मतलब कि जो आपकी ड्राई वेट है वो बढ़ेगी, मास बढ़ेगा और नंबर बढ़ेगा, तब जाकर के किसी की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, फिर अगला क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन द ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, किसी के लाइफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर में हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मदर की वॉर्म में हम लोग ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद बाहर आते हैं तो फिर चाइल्डहुड डेवलपमेंट होता है, फिर अडल्टहुड आता है, फिर उसके बाद से हम लोग जो है वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें वो Okay, so right now we had seen the definite shape and size of the living organism, and now we are going to start the growth of the living organism. Growth and development. Growth and development we had seen a bit, but इसको थोड़ा और डिटेल में अपन देखेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि जब तक उनका डेथ नहीं होता तब तक उनके अंदर में कोई ना कोई ब्रांचेस, कोई ना कोई रूट जो है वो डेवलप होते रहता है। जबकि एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, सर्टेन एज तक होती है ग्रोथ, उसके बाद से कहीं पे भी इंजरी हुई, कहीं कट छट हुआ तो वहां पे रिजनरेशन, रिपेयरमेंट होती है, बट देयर इज नो ग्रोथ आफ्टर द सर्टेन एज। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ग्रोथ इज कंटिन्यूड थ्रू आउट द लाइफ एज दे हैव मेरिस्मेटिक एरियाज वेयर सेल डिवीजन ऑकर्स रेगुलरली। इनके पास क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक एरियाज होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स होती है जहाँ पे जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके चलते प्लांट में ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में क्या होता है? एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर में 21 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, पर फिर कहीं चोट लगा हमको तो फिर वहां पर रिपेयरमेंट के लिए सेल्स आते हैं। ठीक है, तो रिपेयरमेंट के लिए बस सेल डिवाइड करते हैं और वन आउट सेल को रिमूव करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। और ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है। ठीक है, growth and development are two methods, that is interscaption method and accretion method। interscaption method में क्या होता है? what is happening in the interscaption method कि मतलब एक सेल है उसके ऊपर दूसरा सेल लाई कर दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्कैप्शन ग्रोथ। फिर दूसरा है एक्रेशन। एक्रेशन में क्या होता है कि एक के बगल में दूसरा सेल, दूसरे के बगल में तीसरा सेल, इस तरह से अगर अरेंज हो जाएंगे एक लाइन में तो उसको अक्रेशन मेथड बोलते हैं। सो ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, इंटरस्कैप्शन एंड अक्रेशन। ठीक है, फिर ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? तो दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक है और एक प्रोटोप्लाज्मिक है और प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, जो लिविंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक, और जो नॉन लिविंग है वो अप्रोटोप्लाज्मिक है। ठीक है, the component of living matter like cytoplasm and nucleus। न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म की जो कंपोनेंट होती है वो क्या होती है? प्रोटोप्लाज्मिक होती है, यानी कि वो लिविंग मैटर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, यानी कि वो सोल है सेल के हमारे। जबकि जो प्रोटोप्लाज्मिक में क्या होता है? दे आर नॉट लिविंग मटेरियल फॉर्म बाय सेल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? सेल वॉल और बोन मैट्रिक्स एंड द फाइबर्स, ये सारे जो है वो नॉन लिविंग चीजों से मिलकर के बने होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स ए प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद से मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अ सेल। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं उन सबके सम टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारे लिविंग बीइंग की। लिविंग बीइंग में आपको याद रखना है कि दो तरह की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, एक है मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है? कॉन्शियसनेस।
ठीक है, उनकी बॉडी में हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे और जो भी लिविंग बीइंग होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ म्यूल हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग स्टेराइल होते हैं, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ग्रोथ, सारे लिविंग बीइंग में ग्रोथ होती है, पर ऐसा नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। माउंटेन्स की भी साइज जो है वो बढ़ती है, ठीक है, बट माउंटेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग में भी तो ग्रोथ हो रही है, लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग एंड द रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस मतलब कि आप किसी चीज को लेकर के कितने ज्यादा अवेयर्ड हो, ठीक है। जैसे अपने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, तुरंत ही अपने हाथ को खींच लिया, दैट इज व्हाट कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म देख लिया, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, बोर्ड्स में, कि विच आर द डिफाइनिंग फीचर्स। सो इट इज मेटाबॉलिज्म एंड द अदर इज, दूसरा क्या है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें आती है, एनाबॉलिज्म, दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन। जो भी बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन है, मतलब दो तीन चीजें मिली, उन्होंने मिलकर के एक प्रोडक्ट बना दिया, तो जो भी बिल्डिंग ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? दैट इज एनाबॉलिज्म। और जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है वो क्या है? कैटाबॉलिज्म है। इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और एनाबॉलिज्म से क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमको बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन मिलकर के और ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो भी क्या एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दो तीन चीजें मिली और उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है, इट्स एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फिर कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। और इसके अंदर क्या आते हैं? ऑल द ब्रोक डाउन रिएक्शन। जो ब्रोकन डाउन रिएक्शन है वो किसके अंदर आते हैं? दे ऑल आर कमिंग इन द कैटाबॉलिज्म। जैसे कि डाइजेशन होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है ताकि वो स्मॉलर फॉर्म में डिवाइड हो और हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो डाइजेशन इज व्हाट? इट्स अ कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? इट्स अ एनाबॉलिज्म, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे एनाबॉलिज्म में, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटेंगे, ठीक है। तो ये हमने फीचर देख लिया, ग्रोथ के बारे में देख लिया और हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लिया। अब अगली जो फीचर हमको पढ़नी लिविंग बीइंग की वो क्या है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो मेंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? होम्योस्टेसिस, ठीक है। और होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग, मैंने बताया, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? जो सॉल्ट और वाटर की बैलेंस है ना, उसको अगर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब क्या? जो टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों चीजें किसमें आएंगी? होम्योस्टेसिस के अंदर आएंगी। थर्मो मीन्स हीट को रेगुलेट करके रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्या है? होम्योस्टेसिस तो आपने समझ लिया ना, मेंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन suitable for functioning of body organ, ठीक है। सो दिस इज द होम्योस्टेसिस। फिर नेक्स्ट क्या? हमारा रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस। मतलब अगर मान लो कि किसी भी प्रजाति को अपनी दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेक ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या? डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक डिस्टिंग्विश फीचर है कि लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सारे जो
ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन नहीं करते, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बहुत सारे सिस्टराइल इंडिविजुअल है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। फिर जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है रिप्रोडक्शन की वो कौन कौन सी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या होता है, अ मींस नॉट, सेक्सुअल मींस फ्यूजन, तो जहां पे भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो उसको असेक्सुअल बोलते हैं, और सेक्सुअल में क्या होता है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।